A very good morning to all of you. Thanks again to the participants for joining this particular important session on quality education. As you all know, uh, that we belong to a university, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. Amrish ji, this university actually is for higher education, but this is the only government technical university in India. Government university and technical university in India for women. And we are having programs like BTech in 4 different streams. And then after we are having MTech and PhDs also. Apart from that, we are also having programs in architecture, masters in planning, MCA, and now recently we have started programs in BBA and MBA. So this university has incorporated Anveshan Foundation in the year 2016 to propagate the culture of innovation, entrepreneurship, incubation among girls and women entrepreneur and women enterprises. And from then, we are continuously conducting so many programs in this particular ecosystem. Participants, today is the day when we are having a very eminent personality among us, Mr. Amrish Rai. You all know that at the time of Dr. Manmohan Singh, a former Prime Minister, we have introduced a right of education among many rights which are given to the citizens of India. And under that particular right, we were having right that everyone can get education, right? And that education is also free to an extent. From that time only, Amrish Rai ji is active. He actually incorporated a forum known as Right to Education Forum. He is a national convener of this particular forum since its inception. Till now, he is having a consortium of more than 10,000 NGOs, social activists, and educationists. They all are associated with this particular forum. I personally also want to be associated with this particular forum because this forum is doing very good job. You all can understand that till now they have done work with 1.5 million schools in India. When I say 1.5 million, that is 15 lakhs of schools in India. Especially, Mr. Rai is also active in girls education, girls primary education, and it is the time to listen to him that what all he has done, where India is exactly, and in the terms of sustainable development goal 4, how and what can be done in improving quality education. Amrish Jayji, on behalf of Anveshan Foundation and my university, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, I welcome you, sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, thank you. Sir, I would like to introduce yourself also with the achievements you have done under national, as a national convener in the Right to Education Forum. Yeah. Mr. Amrish Rai. Thank you. So, I should start now? Yes, yes, sir. Please, sir. Okay, okay. बहुत धन्यवाद. You have invited me for this important conversation, this SDG, and we are discussing the framework of Sustainable Development Goal in relation to our preparation about the universalization of education. मैं समझता हूँ कि अगर हम ये बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG goal, sustainable development goals was brought after this millennium goal to address the unfinished agenda of millennium development goals 2015. 2015 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूरे करने थे उसके अनफिनिश्ड एजेंडा को एड्रेस करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए गए और द टारगेट द टाइमलाइन for this to achieve the sustainable development goal is 2030. India is also one of them who appreciated and who signed this sustainable development goal agenda with the United Nations. So
and I think, but we have not completed target of Millennium Development Goal, but now we are preparing ourselves to achieve the Sustainable Development Goal till the 2030. अब क्या सिचुएशन है ये देखा जाए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 पॉइंट्स हैं जो अचीव करना है अदर देन एजुकेशन. आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द एजेंडा ऑफ एजुकेशन. अदरवाइज उसमें बहुत सारे गोल्स हैं जिनको अचीव करना है. इसमें पॉवर्टी भी है, इसमें जेंडर पैरिटी भी है, इसमें एम्पावरमेंट भी है मार्जिनलाइज सेक्शन का और विमेन का. ये बहुत सारे एजेंडे हैं उसमें. लेकिन गोल 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, वो बात करता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अप टू सेकेंडरी एजुकेशन. पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 थे वो था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. But you know the elementary education was achieved by the many developed countries, and now they are moving towards the universalization of secondary education. Now the whole United Nations has set up the agenda to achieve the sustainable development goal, universalization of secondary education under the sustainable development goal. तो ये जो लेकिन हमारी क्या स्थिति है? जब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे तो हमने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया अपने देश के अंदर, और सर्व शिक्षा अभियान में बहुत उसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हमने जो थे वो जैसे नॉन फॉर्मल स्कूल का या पैरा टीचर्स का जो एलिमेंट था सर्व शिक्षा अभियान में, उसकी बहुत आलोचना हुई. एंड यू नो दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव एक very comprehensive education commission which is known as कोठारी कमीशन. ये हमने 1964 में बनाया था और उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 66 में आ गई थी. और उसके बाद फिर हमने उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट इशू थे जो बहुत पॉपुलर हुए थे. एंड दैट कोठारी कमीशन रिपोर्ट, आई थिंक इट इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन. और वो जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी, 2 चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एक तो था कि 6% एलोकेशन फॉर एजुकेशन टिल द 66 में उन्होंने रिपोर्ट आई थी और 86 तक 6% जीडीपी का पैसा एजुकेशन पर खर्च करने की रिकमेंडेशन थी. और दूसरा पॉइंट जो बहुत पावरफुली था, बिकॉज एजुकेशन को उन्होंने, कोठारी साहब ने कहा कि वी हैव ए सेग्रीगेटेड कंट्री एंड दिस to make integration within the society, with the different section of the society, we need to start from education, and that's why they have proposed a structure that is the Saman School Pranali, common school system. And this common school system was, the idea of common school system was derived on the basis of neighborhood schools. और ये कोई नई बात नहीं थी. यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने नेबरहुड स्कूल्स के जरिए शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किया था. 2 ये बड़ी पॉपुलर रिकमेंडेशन थी कोठारी साहब की, जो एक था कि 6% जीडीपी और दूसरा था कॉमन स्कूल सिस्टम. 68 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इन दोनों आइडियाज को सब्सक्राइब किया. 68 में जो पॉलिसी बनी थी, पहली पॉलिसी आई थी एजुकेशन पॉलिसी, उसने कहा था कि ये हम दोनों आइडियाज को लागू करेंगे. और भी बहुत सारे बातें 68 की पॉलिसी में कही गई थी. इसके बाद फिर आप जानते हैं 86 की पॉलिसी आई और 92 का एक्शन प्लान आया. 86 की पॉलिसी में हमने नॉन फॉर्मल स्कूलिंग इंट्रोड्यूस कर दिया. डिस्पाइट ऑफ दैट कि वी हैव सब्सक्राइब दिस 6% जीडीपी आइडिया एंड कॉमन स्कूल सिस्टम बोथ, वी रिटेन दिस इन 86 पॉलिसी एंड 92 एक्शन प्लान आल्सो. उसके बाद फिर एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई
क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, एजुकेशन वाज नॉट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसलिए एक बड़ा मुहिम चला और 93 में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन केस के नाम से वो बहुत जजमेंट मशहूर है, आंध्र सरकार वर्सेज उन्नी कृष्णन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। If you have no education, it means you are not leading a dignity-full life in the country. तो इसलिए जीवन के अधिकार के साथ जोड़ के शिक्षा के अधिकार को देखने की बात कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड, टू एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री। और उसके बाद एक बड़ा मुहिम चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है और आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एजुकेशन, इसको दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। इट मींस 14 इयर्स तक बच्चों को शिक्षा देने का काम राज्य का है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट इफ रिसोर्सेज परमिट्स इट कैन बी कंटिन्यू आफ्टर द एज ऑफ 14 इयर्स। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन तक इसको जारी रखा जा सकता है अगर रिसोर्सेज इजाजत दें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद सिविल सोसाइटी गेट गैल्वेनाइज्ड और पूरे देश में एक आवाज उठी कि 18 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार दिए जाए। इंटरनेशनल लेवल पर भी जमंतियन कॉन्फ्रेंस और डकार के डिक्लेरेशन आ चुके थे और जिसमें कि एजुकेशन फॉर ऑल की का एक स्लोगन संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया के लिए दिया था। हर सरकारों को ये सुझाव दिया गया था कि वो अपने यहाँ शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करें ईएफए के अंतर्गत। भारत सरकार ने भी फिर जब ये मुहिम शुरू हुई और मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, नेशनल अलायंस फॉर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया था। 2000 में दिल्ली में 40,000 लोग इस मांग के लिए आए थे रामलीला मैदान में कि 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। And that time Atal Bihari Vajpayee ji was the president and Murli Manohar Joshi ji was the शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। और लेकिन ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश हुआ, एक बिल बनाया गया और भारत सरकार ने बनाया शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाने के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट वाज प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट। लेकिन उसमें 18 साल के बजाय वो कन्फाइंड कर दिया गया 6 से 14 साल। मैंने क्लास 1 टू क्लास 8 they have they brought under the purview of fundamental right। और 6 साल से नीचे के जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है, ये दोनों को उस फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये बिल पार्लियामेंट ने पास किया और शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। दिस वाज द हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री जब आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के साथ आर्टिकल 21 ए का पार्ट शिक्षा बन गई। एक मौलिक अधिकार मिल गया देश के बच्चों को, लेकिन ये कन्फाइंड था क्लास 1 टू क्लास 8 तक और हमने इससे अपनी मांग जारी रखी उसके बाद से भी कि ये प्री प्राइमरी और सेकेंडरी को भी इसमें लाया जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज है। जैसे आंगनबाड़ी, आप जानते हैं कि प्राइवेट सिस्टम में नर्सरी और केजी वगैरह चलते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में वी हैव आईसीडीएस फॉर द बिलो 6 इयर्स ऑफ एज ग्रुप और 6 से 14 साल तक का हमारे पास कानून है और 14 साल के बाद हमारे पास आरएमएस है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये रहा है अभी तक। तो ये जो फ्रेगमेंटेड था, हमने ये मांग जारी रखी कि कानून के दायरे में प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को भी लाया जाए और शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किया जाए। ये बहुत ही हिस्टोरिक घटना थी और अगर कहा जाए तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए भी को अचीव करने का भी एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट था राइट टू एजुकेशन एक्ट, जब हमने इस देश में लागू किया।
2002 में फंडामेंटल राइट बना और उसके बाद एज में स्टेट बाय लॉ डिटरमाइन, ये उस आर्टिकल 21A में लिखा गया कि इस कानून को, इस फंडामेंटल राइट को कानून के जरिए लागू किया जाए एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, और उसके बाद कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 8 साल बाद 2009 में शिक्षा अधिकार कानून पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। अब हमारे सामने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का एक लॉ था, लॉ ऑफ लैंड, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम लागू करके इसको अचीव कर सकते थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पहला कानून था जिसने टाइमलाइन भी दिया, 2013 तक सारे प्रोविजंस बनने हैं और 2015 तक सारे आरटी एक्ट के टारगेट पूरे करने हैं। इवन ट्रेंड एंड रेगुलर टीचर्स जो है वो 2015 तक अपॉइंट रिक्रूट करने हैं। ये विद टाइमलाइन दिस आरटी एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2010। तो इसके बाद से हम लोग जो फंडामेंटल राइट के समय भी संघर्ष में शामिल थे और इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, तो उसके भी प्रोसेस में हम लोग शामिल थे और हमने चाहा था कि ये कॉमन स्कूल सिस्टम के फ्रेमवर्क पर इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बनाया जाए। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट में 4 तरह के स्कूल को लेजिटिमाइज कर दिया गया, and one is the government school, दूसरा special category school, you know, that is also a government school, but that is special category like केंद्रीय विद्यालय, प्रतिभा विद्यालय, सैनिक स्कूल। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो देश भर के सरकारी स्कूल हैं उनसे 8 गुना ज्यादा पैसा केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को दिया जाता है। और केंद्रीय विद्यालय के टीचर किसी और अदर देन एजुकेशन किसी ड्यूटी में नहीं होते, दे आर नॉट involved into the election, census and other duties. And Kendriya Vidyalaya is very good performing schools, I think in comparison to other private schools also, that is very good schools. People are rushing towards Kendriya Vidyalaya. तो ये हो गया। और तीसरा जो है अनएडेड प्राइवेट स्कूल एंड फोर्थ इज द एडेड प्राइवेट स्कूल। 4 तरह के स्कूलों को आरटी एक्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया। और हम जो ये चाहते थे कि ये कॉमन स्कूल सिस्टम के फ्रेमवर्क पर बने, वो बात नहीं हो पाई। वो लड़ाई अभी भी जारी है, समान स्कूल प्रणाली की लड़ाई अभी भी जारी है। तो इसलिए हम आपको ये बातें उठा रहे हैं कि ये जो हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स अचीव नहीं किए, बावजूद इसके कि हमारे पास एक कानून था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 10 सालों में 10 साल हो गए इस कानून को लागू हुए, वी हैव ओनली 12.7% स्कूल्स आर आरटी कंप्लायंट। हम ये प्रोविजन केवल 12.7% स्कूल्स में लागू कर पाए। और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हमारे पास अभी 9 लाख टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है एंड वी हैव 8.3% schools are single teacher, having a single teacher school. And infrastructure में we have only 54% schools who have drinking water, wash facility and functional toilet together. So this is the pathetic condition. तो इसलिए हमको जो कानून 2015 तक लागू करना था, due to the lack of will and we can say resources, we could not implement completely that right to education at grassroots level. और ये हमारे पास एक चारा था जिसको हम पूरा कर सकते थे, वो हमने पूरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अंतर्गत नहीं किया। अब जो हालत है वो ये है कि और आप जानते हैं कि रिसोर्सेज का चैलेंज हमेशा हमारे यहाँ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के सामने बड़ा चैलेंज रहा है रिसोर्सेज का। कोठारी साहब ने 6% की बात 66 में कही, हम कभी भी 6% अचीव नहीं कर पाए।
और आपको जान के हैरानी होगी कि शिक्षा केवल 3.4% या 3 और 4 के बीच में ही शिक्षा पर एलोकेशन होता रहा, और जिसकी वजह से एक बड़ा क्यूमुलेटिव गैप हो गया। अगर 66 में हमने 6% किया होता तो इतना बड़ा गैप हमारे सामने नहीं होता। और आज अभी अभी जो कोरोना अभी अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने एक आंकड़ा दिया है जो एनएसएसओ 2017-18 से डिराइव किया गया है कि वी हैव 3.4 करोड़ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। और इस कोरोना महामारी के चलते जिस तरह का स्ट्रेस रहा है बच्चों के सामने, और जिस तरह के लर्निंग लॉसेस हुए हैं, और खासतौर से गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ये संख्या डबल होने की संभावना जताई जा रही है कि ये जो 3.4 करोड़ आउट ऑफ स्कूल है, ये संख्या 7 करोड़ 8 करोड़ तक हो सकती है, क्योंकि 20 से 25% आई थिंक the apprehension is that children will not going to back to school। तो ये भी एक बड़ा खतरा हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उससे हम अभी उसको अचीव करने में बहुत दूर है, क्योंकि हमने अभी प्राइमरी एजुकेशन ही यूनिवर्सलाइज नहीं किया, हमने अभी एलिमेंट्री एजुकेशन ही यूनिवर्सलाइज नहीं किया। हमारे पास एक कानून था और शिक्षा मौलिक अधिकार थी, हम सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को ला सकते थे। एंड आई थिंक यू विल बी सरप्राइज दैट 13-14 में यूनेस्को ने एक जो डेटा दिया था, उसमें 98.5% का इनरोलमेंट बताया था, बट ग्रेजुअली इट हैज कम डाउन, एंड नाउ यू नो द 3 to 4 करोड़ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। तो इसलिए हम इस कानून को लागू करके 100% जो हम अचीव कर सकते थे वो हमने अचीव नहीं किया। और आप जान के आपको हैरानी होगी कि हायर एजुकेशन का भी सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन में हमने ये देखा है कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में 25% का ट्रांजिशन है आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन। जो जीआर है, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, दैट इज ओनली 25.2%, जबकि ये चाइना में 43% है और यूनाइटेड स्टेट में 85% है। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे हमारे इनरोल्ड होते हैं उनका ड्रॉप आउट बहुत तेजी के साथ होता है, और ये प्राइमरी लेवल पर हर पांचवा बच्चा ड्रॉप आउट होता है। अपर प्राइमरी लेवल पर हर तीसरा बच्चा ड्रॉप आउट होता है, और सेकेंडरी लेवल पर हर दूसरा बच्चा ड्रॉप आउट होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रॉप आउट है हमारे सामने, देश के सामने। और हायर एजुकेशन में हम 25% बच्चे ही ट्रांजिशन रेट है, जो चाइना और अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। तो अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको अचीव करना भारत के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये, और इसका कारण ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, उन्होंने ये बात उठाई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और रीस्ट्रक्चर करने के लिए उन्होंने पहली बात उठाई है कि हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, विच इज निग्लेक्टेड, एंड दिस इज ट्रू कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज हैव बीन नेग्लेक्टेड इन आवर कंट्री, और दैट इज द फाउंडेशनल एज। एंड 60% क्यूमुलेटिव ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो 6 साल की उम्र के नीचे से होता है, और नीचे होता है, और हमारा सबसे कम फोकस इस पर है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर। दुनिया के बहुत सारे देश बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन पर, बट वी आर नॉट, वी हैव लेफ्ट दिस एज ग्रुप विद द आईसीडीएस। और आईसीडीएस में आप जानते हैं एजुकेशन कंपोनेंट इज वेरी वीक, एंड आईसीडीएस इज नोन फॉर द यू कैन से द न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस पे फोकस किया है, और ये भी कहा है कि 3 to 18 ईयर्स
ये जो एज ग्रुप है इसकी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए हमको काम करना चाहिए। लेकिन कोई रोड मैप नहीं है। कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया था और जिसको कैबिनेट ने हटा दिया, वो था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंड किया जाए फ्रॉम 3 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी इनको भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के परव्यू में लाया जाए एंड मेक देम फंडामेंटल राइट टू for the children, so that it would be mandatory for central and state as well, because education is under the concurrent list and union government and state government both are responsible for that. तो अगर आप इसको कानूनी हक बना देते, यूनिवर्सलाइजेशन 3 से 18 साल के बच्चों की शिक्षा यूनिवर्सलाइजेशन इज वेरी गुड थिंग, बट व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? अगर कानून आप 10 साल में नहीं लागू कर पा रहे हैं और केवल 12.7% का ही कंप्लायंट रेशियो है, तो इसका मतलब कि अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया और इसको कानून के दायरे में नहीं लाया और इसको मैंडेटरी नहीं बनाया, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये कोई कंपल्सन नहीं होगा। ये हमारा क्रिटिक रहा है हमेशा कि ब्रिंग देम अंडर द परव्यू ऑफ द आरटी एक्ट, सो दैट यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको, और तभी आप सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल न केवल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ही बात करता है, बल्कि वो बहुत सारी चीजें करता है। जैसे वो कहता है कि फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये गोल 4.1 बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4.2 बोलता है कि सभी बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डेवलपमेंट, केयर, ये जो है यूनिवर्सलाइज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट उनका बोलता है कि ये मेन और वेमेन दोनों के लिए इक्विटेबली ये एफोर्डेबल होना चाहिए, टेक्निकल, वोकेशनल एंड टर्सरी एजुकेशन। और इसी तरह से वो सस्टेनेबल यूथ और एडल्ट्स के लिए भी बोलते हैं स्किल और टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल। तो दिस गोल 4 इज एंड जेंडर पैरिटी की बात करता है। तो ये जो गोल 4 है, ये इट इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो एक व्हीकल है, एंड दैट व्हीकल इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, सो वी नीड टू एक्सटेंड द एरिया ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड ब्रिंग प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी अंडर दैट। एक बात। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम ये कह रहे हैं कि ये इक्विटेबल होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए, तो इट मीन्स द गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। When you are transferring the responsibility to the private sector and bringing them into the system, तो इसका मतलब कि फ्री और इक्विटेबल जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम एक तरफ करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने कहा है। हमारे देश में आप जानते हैं कि बहुत तेजी के साथ सरकारी सिस्टम के कमजोर होते जाने की वजह से और रिसोर्सेज की कमी की वजह से प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। नर्सरी से सेकेंडरी एजुकेशन तक एंड हायर एजुकेशन, 75% space of higher education has been captured by private system, or now they are moving towards secondary, primary and nursery, और वो भी एक बड़ा दायरा वो कैप्चर करते चले जा रहा है। And the 45% children are in the private system at school education। तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राइवेट सिस्टम की तरफ जा रही है और प्राइवेट सिस्टम they are against to the any regulation for them। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको अचीव करने के लिए
आपको अपने सरकारी सिस्टम को, सरकारी स्कूल के ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है, और इसको मजबूत करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। और हम कभी भी 6% की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी रिटरेट किया 6%, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं बताया। वी आर रिटरेटिंग 6%, बट हमेशा एजुकेशन इज अंडर फंडेड। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जो पैसे भी हम देते हैं, हमारा जो मैकेनिज्म है पैसे का डिसबर्समेंट का, 25% अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड पैसा होता है जो वापस चला आता है। एक तो हम पैसा कम देते हैं, दूसरा उसके यूटिलाइजेशन का कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग दिस vacancy, 9 lakh vacancy at elementary level of teachers, you know, and teacher training institute की हालत इतनी खराब है, जिस पर क्वालिटी एजुकेशन लाई करता है, उस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 92% टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर, and the children when coming for the TET at the time of recruitment, teacher eligibility test, the result is only 7%. 7% बच्चे जो है वो पास कर पाते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सिस्टम का जो टीचर ट्रेनिंग है वो कितना पैथेटिक है। तो ये सारी कमजोरियां जब तक हम नहीं पूरी करते, रिसोर्सेज एक बड़ा भारी मुद्दा है हमारे देश में। अभी इस बार कोरोना क्राइसिस के बाद हमें उम्मीद थी कि एक स्पेशल पैकेज मिलेगा, और हमारे जो है जो रेगुलर फंडिंग है उसमें उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस बजट में जो पेश हुआ है, बजट सेशन चल रहा है अभी, 6,000 करोड़ का की कटौती हो गई शिक्षा पर। पिछली बार 98,000 करोड़ था, इस बार 93,224 करोड़ था। तो अगर रिसोर्सेज इस तरह से कटेंगे, स्कूल एजुकेशन में पिछली बार 38,000 करोड़ था, नाउ वी हैव 31,050 करोड़ ओनली। तो ये जो कम होता चला जा रहा है शिक्षा के बजट में, इससे ये उम्मीद नहीं होती कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर लेंगे। और ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए फ्री एंड इक्विटेबल एक्सेस की गारंटी करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। और अगर ये करना है तो आपको सरकारी सिस्टम पर लाई करना पड़ेगा। तो ये बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि शिक्षा की एक लड़ाई है, शिक्षा के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर हम प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी फाउंडेशन कमजोर होगी, और हायर एजुकेशन में भी हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप ये देखिए कि अभी जो 500 जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है, 500 टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, उसमें सिर्फ एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर, जिसका नंबर 300 है। 300वीं जगह पर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर का। तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड रैंकिंग में आप समझ सकते हैं कि 500 ग्लोबल रैंकिंग में केवल एक इंस्टीट्यूट हम हिंदुस्तान का इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये सिचुएशन है, इस तरह की हालत है, और इसके लिए जरूरी है हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वी कांट डिस्कनेक्ट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। वी नीड टू कनेक्ट ऑल दीज प्री प्राइमरी, सेकेंड, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो इतनी बात हमें कहनी है। और आईसीडीएस पर भी आप देखिए, इस बार आईसीडीएस एकमात्र जो है वो तो छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम है, उसमें भी इस बार बजट में कटौती हुई है। 28,000 हमने करोड़ 557 रुपए हमने करोड़ रुपए हमने दिए थे 2021 में। नाउ इट हैज कम डाउन टू 20,105 करोड़। तो अगर रिसोर्सेज की कमी होती जाएगी, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, तो हम क्वालिफाइड ट्रेन टीचर नहीं दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे, बच्चों को इनरोल नहीं कर पाएंगे। और आप समझिए इस समय सबसे ज्यादा पैसे को बढ़ाने की जरूरत थी। एंड व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर हैज इनवाइटेड अस फॉर ए प्री बजट कंसल्टेशन, वी हैव सबमिटेड ऑल दीज पॉइंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि इस समय आपको थोड़ा
बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। और ये ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात आप कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, बैंडविड्थ नहीं है हमारे पास। वी हैव ओनली 24% एक्सेस ऑफ ऑनलाइन इज दिस कंट्री। इफ 24% जो है अगर एक्सेस है ऑनलाइन का, तो आप समझ सकते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है। Because our marginalized children, the least backward, and all these children, minorities, girls especially, they will be deprived from to getting the quality education when you will focus on online education. तो 10% लोगों के पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन नहीं। आप जानते हैं जिस तरह की सोसाइटी है उसमें लड़कियों को स्मार्टफोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं तो आपको पैसे उसमें रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, टीचर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा। स्कूल लेवल पर हमारे टीचर्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। यू शुड इंट्रोड्यूस दिस टेक्नोलॉजी टू द टीचर्स आल्सो। तो ये हमारा सबमिशन है आपके सामने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव, गोल्स आर वेरी फाइन एंड एवरीबॉडी इज कमिटेड टुवर्ड्स to fulfill the sustainable development goal till the 2030। और उसके लिए यूरोप ने बहुत कुछ प्रयास किए हैं, बहुत सारे फंड लगाए हैं, लेकिन अभी हमारी हालत बहुत खराब हुई है। अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं जिक्र करके खत्म करूंगा, कि वर्ल्ड बैंक ने यूनेस्को के साथ एक रिपोर्ट दिया है और ये कहा है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन्होंने अपने एजुकेशन बजट में बहुत कटौती की है, बड़ी कटौती की है, and they have come down to less than 10% of total expenditure। हमारी हमेशा से मांग रही है कि 10% केंद्रीय बजट का और कम से कम 25% राज्यों के बजट का शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, इफ यू आर सीरियस फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो दिल्ली सरकार ने 25% किया है, एंड आई थैंक्स टू दिल्ली सरकार, दे हैव रिटेन दैट परसेंटेज ऑफ एलोकेशन फॉर एजुकेशन। लेकिन भारत सरकार के बजट में हमेशा कटौती होती जा रही है। इस बार जो पैसे दिए गए हैं वो कुल बजट का 2.7% है। और अगर जीडीपी के टर्म में आप देखें, जीडीपी के टर्म में केंद्र और राज्य दोनों को जोड़ा जाता है, तो जो एजुकेशन का हिस्सा केंद्रीय बजट में है दैट इज ओनली 0.42%। तो अगर केंद्र सरकार बजट में कमी करेगी तो ये एक राज्य सरकारों से आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकारें केवल केंद्र की सहायता पर ही एजुकेशन के मामले में निर्भर है। जो पिछड़े राज्य सरकार है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कर्नाटका एंड तमिलनाडु, but the UP, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, all these backward states, they are depending only on the central assistance, central help। और अगर उसमें कटौती होगी तो यहाँ के लाखों बच्चों के लिए शिक्षा पाना बहुत मुश्किल होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतने अच्छे से अपना सेशन कंप्लीट किया है। अमरीश शाह जी, जैसे आपने बताया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ल्ड वाइड एंड वी विल हैव टू अचीव इट बाय द टाइम पीरियड 2030। जैसे कि राज सर ने कहा कि अगर हम SDG 4 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ बाकी जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी एजुकेशन इट इज द क्रक्स। एवरीथिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम देयर बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। एक अच्छी एजुकेशन हमारे साथ आना ये जरूरी है कि हमें भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो। So now it is the time for the participants. If you have any questions, please feel free to ask. अमरीश शाह जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बजट है वो नहीं बढ़ाते हैं, वो हमेशा 10% या 6% से कम रखते हैं तो इन द एजुकेशन। तो सर, इसकी पीछे रीजन क्या है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट समझती नहीं है, या उनके पास कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुछ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो स्पेंड कर रही हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, ये तो आपने बड़ा ही बहुत ही मूल प्रश्न पूछ लिया हमसे कि क्या रीजन है इसके पीछे। बेसिकली एजुकेशन अभी
इनके प्रायोरिटी में है नहीं। देखिए डिफेंस का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। आप चाहे कितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, लेकिन आपने कभी भी डिफेंस के बजट में कटौती नहीं देखी है, क्योंकि आप समझते हैं कि देश की रक्षा के लिए डिफेंस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो सरकार ये समझती है कि डिफेंस पर खर्च करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो डिफेंस पर जो है कभी भी बजट में कटौती नहीं करती है। लेकिन जब भी कभी क्राइसिस होती है तो सबसे पहला हमला सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे होता है, जिसमें एजुकेशन तो बहुत बड़ा सफर है, तो हमेशा इस पर हो जाता है। और दूसरी तरफ धीरे धीरे ऐसी पॉलिसी बनाते हैं आप कि जिससे प्राइवेट सिस्टम को आप एंट्री देना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया है, $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ये $3000 मिलियन की एक स्कीम है, स्टार परियोजना, जिसमें टीचर का स्ट्रेंथनिंग है और 3-4 राज्यों में वो होने वाला है। $500 मिलियन दे के वर्ल्ड बैंक पूरी प्लानिंग बना रहा है, and now they are developing a framework how to get involved the private system inside the government system. अब आप सोच सकते हैं प्राइवेटाइजेशन सिस्टम के बाहर ही नहीं हो रहा है, बल्कि सिस्टम के अंदर भी आप सब अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के बजाय आउटसोर्स कर रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर को। ये एक बहुत ही खतरनाक पहलू हो रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म तो डेवलपमेंट में एजुकेशन है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो आपका डेवलपमेंट पैराडाइम है उसमें एजुकेशन की क्या जगह है, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। अगर वो नहीं है, आप डेवलपमेंट पैराडाइम में एजुकेशन को नहीं रखते, और मैं सीधे सीधे बोलूं कि एजुकेशन पर अगर वोट मिलना होता तो शायद एजुकेशन प्राइमरी एजेंडे में आ जाता, वो नहीं आता। तो इसलिए जब भी कटौती होती है एजुकेशन पर कटौती होती है। और फिर आपने हमारे देश में शिक्षा जो है वो दुनिया की सब बहुत भेदभावपूर्ण शिक्षा है का ढांचा है हमारे देश में। हमारे देश में जो जो संपन्न लोग हैं उनके लिए अलग सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम है उनके लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सरकार के अंदर भी हमने एक ऐसा अलग सिस्टम बना रखा है जहां पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड स्कूल। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, प्रतिभा विद्यालय, ऑल दीज स्कूल्स दे आर। तो हम केवल ये नहीं है कि एक इतना डिस्क्रिमिनेटरी ढांचा हमारे देश के अंदर मौजूद है, एक प्राइवेट सिस्टम है, दूसरा सरकार के अंदर स्पेशल कैटेगरी सिस्टम और वो सरकारी स्कूलों का एक बड़ा ढांचा मौजूद है। तो ये हमने खुद बना के रखा हुआ है, तो इसलिए उससे उनका काम चल जाता है। मैं बस 1 मिनट लूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अभी डिसीजन दिया होगा, पिछले दिनों आपने देखा कि क्यों नहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं हो रहा है कि जिन लोगों को ये लागू करना है उनके बच्चे इस सिस्टम में नहीं है, वो बाहर है। तो इसलिए इस सिस्टम पे जो उनका फोकस होना चाहिए, जो स्टेक होना चाहिए, वो नहीं है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो लोग पब्लिक फंड से पैसा लेते हैं, सरकारी फंड से पैसा लेते हैं, वो बच्चे सरकारी स्कूल में आने चाहिए, और अगर वो आएंगे तभी सरकारी स्कूलों में बदलाव होगा। और ये फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां से एक स्टे ले आई। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार खुद स्टे लेने जा रही है। हाई कोर्ट तो फैसला दे रहा है, लेकिन सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और उस हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ स्टे देके चली गई। तो ये ढांचा हमने खुद ही बना के रखा हुआ है, हम खुद ही बना के रखे हुए हैं। और अगर ये ऐसा होता, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा जहां अधिकारियों ने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजे हैं, कुछ ऐसी जगहों पे जहां डीएम ने भेजा है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल, उस जिले के स्कूलों पे बहुत असर पड़ा है और उसमें बहुत बदलाव आ गया है। और क्वालिटी एजुकेशन की जहां तक आप बात करते हो, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा हुआ है। और जहां सरकार फोकस करेगी, दिल्ली में भी हम देखते हैं कि सरकार एजुकेशन को हमेशा एजेंडे में रखती है, तो दिल्ली के स्कूल दूसरे जगहों के स्कूलों से ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सरकार का एजेंडा है। तो इसलिए अगर सरकार इसको प्रायोरिटी में नहीं रखेगी, और प्रायोरिटी बातों से नहीं दिखाई देता, डॉक्यूमेंट से नहीं दिखा देता, रिसोर्सेज में दिखाई देना चाहिए। अगर जो आप बजट पेश करते हैं उसमें जो रिसोर्सेज अलॉट करते हैं, एलोकेट करते हैं, अगर उसमें शिक्षा के लिए जगह नहीं है, तो आप क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत प्रॉमिसेज की गई, जेंडर इंक्लूसिव फंड बनाने की बात की गई है। पूरा एक इसको अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 15,000 स्कूल को हम
NEP के हिसाब से इंप्रूव करेंगे। 15,000 स्कूल इज 10% ऑफ टोटल 1.5 मिलियन स्कूल। तो क्या होगा 15,000 स्कूल को अगर आप इंप्रूव करेंगे तो। दूसरा आपने कहा कि 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे। अब ये 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप कुछ प्रतिभा भी इतने लाख स्कूलों को इंप्रूव करने के बजाय एक साथ। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा में ये है क्वालिटी एजुकेशन और समान क्वालिटी एजुकेशन, सभी बच्चों को एक जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। Equity, yes, sir. Equality and equity, both are important. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, मैं डॉक्टर अशोक कुमार चंद्रा फ्रॉम छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहा था सर। Yes, sir. ये पूछना चाह रहा था सर, अब सर से अभी एक्सपर्ट लेक्चर में सुना कि वास्तव में एजुकेशन जैसी जो ढांचा है वो एजुकेशन सिस्टम हायर जो फैमिलीज होते हैं उनके लिए अलग तरीके का है, और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखा है, राइट टू इक्वालिटी लिखा है, राइट टू इक्वालिटी के नीचे में लिखते हैं राइट टू एजुकेशन। इसका मतलब हुआ इक्वालिटी इन दी एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद भी हमारी जो एजुकेशन की जो सिस्टम है इतनी भिन्नता क्यों है उस पे। दूसरा सर ने भी बताया कि भाई वो 100 स्कूलों को बना रहे हैं, तो उसमें ऐसा मैंने सुना है सर कि जो स्कूल जो बना रहे हैं 100 सैनिक स्कूल जो बना रहे हैं, उस 100 सैनिक स्कूल में एक बात सामने आ रहा है, वो ये है कि बहुत सारे जवाहर जो नवोदय विद्यालय जो चलते हैं उनको ये लोग सैनिक स्कूल में बना रहे हैं। तो ये तो मतलब कि इस पर हम संगठित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ये तो सरासर गलत है। जो एक बेसिक ढांचा बना हुआ है जिसमें जो कॉमन लोग हैं वो कम से कम 80% जो गाँव के जो लोग हैं, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, जो अच्छा शिक्षा लेना चाहते हैं, जो प्रतिभावान हैं, वो प्रतिभावान बच्चे अगर सामने आ रहे हैं और उसमें से हम 80 लोगों को ही जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ले पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। उस अच्छी बात को आप ले जा करके सैनिक स्कूल में, क्या हम सिर्फ मार काट करने के लिए ही हैं? हम क्यों संगठित नहीं हो पा रहे हैं? इतने एजुकेशन का सारे जगह पर बोलते हैं हम बहुत अच्छा एजुकेशन है, हम एजुकेशन है। इवन दो सर की जो कलेक्टर हैं वो इतने अच्छे एजुकेटेड होने के बाद भी उस पोजीशन में जाने के बाद में अपनी उसकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए उसके भी भूल जा रहे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तो सर से अशोक जी, हाँ अशोक जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अम्बरीश जी, सर का क्वेश्चन है कि ये हमने जवाहर स्कूल्स को हमने चेंज करके सैनिक स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसका कोई फायदा है कि बस पॉलिटिकल रीजन है? अब देखिए, ये मेरे समझ नहीं आता कि सैनिक स्कूलों पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं ये, और वो भी प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिल के डेवलप करेंगे अंडर द PPP। ये कौन से प्राइवेट NGOs होंगे जो हमारे सैनिक स्कूलों को चलाने के लिए सरकार की मदद से आएंगे, इस पर भी थोड़ा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि सेना जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है, उनके बच्चे जो है वो बहुत सेंसिटिव है। अब उसमें अगर आप खास विचारधारा को प्रवेश करा देंगे तो भी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो प्राइवेट NGOs को इन्वॉल्व करने की बात उठी है उस पर जरा नजर रखने की जरूरत है कि कौन लोग हैं। धन्यवाद अमरीश जी, बहुत अच्छा बताया। अमरीश जी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा कि हमने जिस टाइम पर हम लोग ने अपनी एजुकेशन ली है, जो हमारा 10+2 का सिस्टम था, हम अपने टीचर से डरते भी थे, डर के पढ़ाई भी करते थे, मोटी-मोटी बुक्स पढ़ा करते थे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करता था, एक कंपटीशन भी होता था अमंग द स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी भी करते थे। और आजकल जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको हमने 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं, जहाँ पे एजुकेशन को एज अ फन ट्रीट किया गया है, जो ठीक भी है, तो काफी हद तक ठीक है ग्लोबलाइजेशन के लिए। लेकिन जो जैसे मान लीजिए अभी 2022 में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, तो आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद अब इसका क्या फ्यूचर दिखते हैं? मतलब कि क्या हमारे पर्टिकुलर इंडियन ब्लड के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इट इज अ गुड ऑप्शन, और या इससे हमें कोई बेटर ऑप्शंस, बेटर हमें रिजल्ट मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर में चेंज करके आप कुछ अचीव कर लेंगे, ये कोई ये सही बात नहीं है, क्योंकि कोठारी साहब ने 10+2 का एक ढांचा दिया था जो कि हमारी सक्सेसिव एजुकेशन पॉलिसीज ने एक्सेप्ट किया। राइट टू एजुकेशन आ गया जिसने 8 साल का एलिमेंट्री साइकिल का एक ढांचा दिया। अब ये
पूरे देश में इसको एक ढांचे में लाने में अभी प्रॉब्लम है। अभी बहुत जगह पे आप देखिएगा एलिमेंट्री क्लास 7 तक है, क्लास 8 तक नहीं है। उसको क्लास 8 तक लाने में अभी वो सरकारें बहुत काम करना पड़ रहा है उनको। तो अभी हम इसी ढांचे को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, जिसमें 10 साल का सेकेंडरी एजुकेशन का है और 2 साल हायर सेकेंडरी का है। ये ढांचा बनाने में ही हम लगे। इसमें कोई बड़ी प्री प्राइमरी में आप 3 to 6 को जोड़ दिए होते, बस इतना करना था। ये आपने क्या किया कि आपने 5+3+3+4 कर दिया। अब ये जो 3 to 6 है, इसमें आपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 को भी लाके खड़ा कर दिया। और ये जो 5 साल का न्यूमरेसी एंड लिटरेसी का जो पीरियड है, इसको आपने आंगनबाड़ी के भरोसे छोड़ दिया। जिस बच्चे को क्लास 1 क्लास 2 में ट्रेंड टीचर आरटी ने दिया, उसको आपने वहां से ला करके आंगनबाड़ी को के हिस्से में डाल दिया। अब आंगनबाड़ी में कितना शिक्षा है आप सब जानते हैं। आंगनबाड़ी कभी शिक्षा के लिए जाना नहीं जाता। तो वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 का बच्चा, जो क्लास 1 क्लास 2 का बच्चा है, वो ट्रेंड क्वालिफाइड टीचर पाने से वंचित हो गया, जिसको आरटी ने उसे दिया था। जरूरत इस बात की थी कि आप जो है, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसके लिए आप स्पेशलाइज्ड टीचर देते और यूनिवर्सिटी जो है उन टीचर को क्रिएट करती, तब तो ये बात समझ में आती। लेकिन अगर आपने इतना बातें कह करके और जब कंक्लूजन निकला तो ये निकला कि आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी, और उसमें भी क्लास 1 क्लास 2 को खींच के आपने ला दिया, जिसको ट्रेंड टीचर आरटी ने दिया था। तो ये इसकी बहुत डाइकोटॉमी है, बहुत ही इस कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। और मैं समझता हूँ ये 5+3+3+4 का जो ढांचा है, इसको इंट्रोड्यूस करने में वर्षों लगेंगे और बहुत पैसे चाहिए, और इसी में पूरा बहस चलती रहेगी कई सालों तक। एक्चुअली जमीन पर कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप डिस्कोर्सेज की बात कर रहे हैं, हमारे देश में शिक्षा के डिस्कोर्स 2 तरह से डेवलप हुआ है। एक तो आपने देखा होगा कि ज्योतिबा फूले का एक डिस्कोर्स हमारे देश में रहा है। जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा बेग, इनका जो डिस्कोर्स था जाति विरोधी संघर्षों से पैदा हुआ था। जो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो ऑपरेशन था, उसके खिलाफ बगावत करके लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश लिए थे। तो कास्ट के जाति विरोधी आंदोलन से एक डिस्कोर्स पैदा हुआ। दूसरा डिस्कोर्स आजादी की लड़ाई के दौरान एंटी कॉलोनियल जो डिस्कोर्स रहा है, वो डेवलप हुआ है। जो आपने देखा होगा गोपाल कृष्ण गोखले और रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो मौलाना आजाद, ये जो ट्रेडिशन है, जाकिर हुसैन साहब, सर सैयद साहब जिन्होंने अलीगढ़, ये जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, ये 2 तरह से हमारे डिस्कोर्स जो है शिक्षा के भारत में चले हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया के तमाम डिस्कोर्सों में वन ऑफ द रिच डिस्कोर्स वी हैव इन आवर कंट्री। और इस डिस्कोर्स को अब आप धीरे धीरे मार्केट के डिस्कोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी चिंता है। जब आप टेक्नोलॉजी कंपनीज का, जिसका कि 2022 में ऑनलाइन बिजनेस हिंदुस्तान में $18 बिलियन का होने जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। ये ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी दीजिए, आप ऑनलाइन बताइए, आप टीचर ट्रेन कीजिए, आप उनको स्किल दीजिए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। बट when you are going to focus and making it main इंस्ट्रूमेंट, तब जाके ये शक होने लगता है कि आप ऑनलाइन कंपनीज का बिजनेस बढ़ाने के लिए एजुकेशन का फील्ड देना चाहते हैं, या बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए ऑनलाइन देना चाहते हैं। ये इसमें डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात कि शिक्षा अगर धीरे धीरे, अब क्या हो रहा है कि हमारी किताबें, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे कैरिकुलम शिक्षाविदों ने बनाए हैं देश में, और टीचर्स ने बनाए हैं, सोसाइटी के कंसर्न से आया है। ये 2 वे डायलॉग से, तरह तरह के डायलॉग से हमने अपने पाठ्यक्रमों को, अब ये अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज के हाथ में चले जाएंगे और वो बनाना शुरू करेंगे हमारे पाठ्यक्रम और हमारे कैरिकुलम,
तो वो जो सोसाइटी का एजुकेशन का रोल असल में खाली एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। एजुकेशन का रोल जो है वो सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने, इगैलिटेरियन सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करने का एजुकेशन का रोल है। डिफरेंट लोगों को, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, डेलोर कमीशन ने 4 बातें बताई थी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। उसमें एक बड़ा उद्देश्य था कि लिविंग टुगेदर, लिव टुगेदर। ये भी शिक्षा बताती है कि विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति वाले लोग, हमारे देश में कितनी विविधताएं हैं, उन सबको एक साथ रहने का तरीका सिखाना भी शिक्षा का एक काम है। शिक्षा का एक सामाजिक बदलाव करना भी शिक्षा का एक काम है। महिलाओं के बारे में जो हमारी पैट्रियार्किकल सोच है, उसको बदलना भी शिक्षा का एक काम है। रोजगार एक काम है, रोजगार देना शिक्षा के कुल कामों में से एक काम है, वो केवल वही काम नहीं है। लेकिन अगर आपने जो हमारे सामाजिक डिस्कोर्स है, उससे जो शिक्षा का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ है, अगर उसको रिप्लेस कर देंगे आप मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज से और टेक कंपनीज के जरिए उसको रिप्लेस कर देंगे, तब फिर ये बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। शिक्षा समाज से कटी फटी केवल एक बहुत ही नैरो माइंडेड सिटीजन्स को क्रिएट करेगी, जो केवल दिन रात अपना नौकरी ढूंढने और पैसा कमाने की फिराक में लगे रहेंगे। फिर वो इंसान बनाने वाला जो शिक्षा का काम है, रोल है, इंसानियत पैदा करने का, वो खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट से सर आया पीपीपी सेक्टर में, गवर्नमेंट से पीपीपी सेक्टर में, और पीपीपी सेक्टर से आप प्योरली प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन को एजुटेक बनते हुए हम सब लोग दिख रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? प्लीज फील फ्री टू आस्क। Sir, I have a question. May I ask? Yes, Dr. Shobha, please. Sir, with due respect, I just want to say कि जो आप कह रहे हैं कि moral education and all, वो moral education तो अभी हमें वैसे भी नहीं मिल रही है. But I disagree, 100% agree with you that privatization नहीं होना चाहिए, उसका aim होना चाहिए, and whole strong what do you say, control of the government should be there. आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, सब कुछ है, एंड इट्स अ रॉन्ग थिंग। आई एग्री विद यू। तो मॉरल एज वेल एज ये है कि फर्स्ट थिंग इज हमें कमाना आना चाहिए कि कैसे कमाए क्या है, क्योंकि वो लैक करता है हमारे सिस्टम में, बट उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही इनको कंट्रोल करना चाहिए। और मॉरल एजुकेशन का तो मुझे नहीं समझ में आता कि देयर आर बुक्स, हम जब छोटे होते हैं पढ़ते हैं, बट मॉरल एजुकेशन आपको करिकुलम से नहीं मिल रहा है। Sir, do you agree कि moral education आपको करिकुलम से नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं एक बात आपसे कहूंगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप करिकुलम 2005 जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट ने भी अपहोल्ड किया और अभी तक वो है, अभी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने नए करिकुलम बनाने की बात की है। वो 2005 में बना। करिकुलम में बदलाव आते रहना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ नए करिकुलम बना। अभी तक जो करिकुलम है वो 2005 है। आप उसको एक बार जरूर पढ़िए, आप उसको डाउनलोड कीजिए, वो वेबसाइट पर मौजूद होगा। 2005 करिकुलम इज द बेस्ट करिकुलम। करिकुलम क्या है? करिकुलम एक्चुअली मेथोडोलॉजी है, स्कूल को चलाने की, टीचिंग की मेथोडोलॉजी है, इन्वायरमेंट क्रिएट करने की मेथोडोलॉजी है। ये इन सारे प्रश्नों को, और मैं समझता हूं कि इस पूरे जो मेथोडोलॉजी है, इसमें आपके बहुत सारे वैल्यू सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो आप करिकुलम 2005 जरूर पढ़िए। मैं समझता हूं कि इट इज द बेस्ट, अब तक का सबसे अच्छा करिकुलम माना जाता है। तो उसको आप देखें और उसको समझें। मैं 1 मिनट में फोन करता हूँ। तो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मॉरल एजुकेशन है, मैं समझता हूं कि अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं देशभक्ति की शिक्षा देना है, अब ये भी बात आ रही है, और मॉरल एजुकेशन भी देना है, ये सब भी देना है। शिक्षा खुद, अगर सही शिक्षा आप दीजिए तो उसमें ये सारे एडजेक्टिव लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। सोशल साइंसेज आप पढ़ाइए, देखिए हमारे देश में सोशल साइंसेज जैसे डेवलप किया, अभी आपने उस पर बात ही करना बंद कर दिया है। अदरवाइज अगर ये सब चीजें हम करने लगे तो इसमें कुछ एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, खुद इनबिल्ट है
मॉरलिटी, वैल्यूज, जब हम ये कहते हैं कि हमारी शिक्षा में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और स्पिरिट इनकलकेट करने चाहिए, तो अब आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेमोक्रेसी की बात करता है, इगैलिटेरियनिज्म की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, सेकुलरिज्म। इसके परिप्रेक्ष्य में हम अपने पाठ्यक्रम बिल्डअप करें, हमको कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं। जब आप मॉरल बोलते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डिस्कशन इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किस तरह का मॉरल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराना गुरुकुल वाला मॉरल था वो ले आना चाहिए, जिसमें शूद्रों को जो है पढ़ाई की इजाजत ही नहीं है। तो ऐसा कोई मॉरल वैल्यू तो नहीं हम डेवलप करना चाहते हम। अब क्योंकि वैल्यूज भी वो बहुत सालों साल डेवलप किए हैं, वैल्यूज भी डेवलप करने में सदियों लग गए। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से इंसानियत को डेवलप किया है, वैल्यूज को डेवलप किया है, ह्यूमन राइट्स के लेवल तक आए हैं। ह्यूमन राइट्स इज ए बिग थिंग इन द वैल्यू सिस्टम। तो अगर सभी को, और शिक्षा भी ह्यूमन राइट है, शिक्षा भी पब्लिक गुड है, शिक्षा सबके लिए अवेलेबल हो, इंटरनेशनली ये माना गया है कि ये पब्लिक गुड है और इसमें इसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। ये सबको मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंटरनेशनल तमाम ट्रीटीज। ये पब्लिक गुड है, ये खरीदा बेचा नहीं जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इलीगल है। आप अगर शिक्षा के बदले किसी से चार्ज कर रहे हैं तो ये वायलेशन है, बिकॉज दिस इज ए ह्यूमन राइट, दिस इज ए पब्लिक गुड। ये इंटरनेशनली बहुत दिनों के बाद हमने डेवलप किया है। पहले क्या था आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा। गोखले साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पेश किया, बिल एक पेश किया, 100 साल पहले की बात बताता हूं मैं, 1930 के आसपास। तो उस समय क्या हुआ कि दरभंगा के महाराजा ने 15,000 लोगों के दस्तखत लाए और ये कहा कि शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो सकता, लोक व्यापीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा जो है वो प्रिविलेज क्लासेस के लिए है, उनके लिए है जो रूल करते हैं, क्योंकि उनको नीतियां बनानी पड़ती है। ये उनकी समझ थी कि जो शासक वर्ग है शिक्षा उसको चाहिए क्योंकि उसको नीतियां बनानी पड़ती है। मजदूर और काम करने वाले लोग को शिक्षा पाके क्या होगा? क्यों हम पैसा इन्वेस्ट करें? उनको डर भी था ना क्यों सर कि पैसा सब हम लोग खर्च पढ़ करें लेंगे उसके लिए? तो वो काम करेंगे, सभी पढ़ेंगे तो फिर कौन काम करेगा? कुछ लोग पढ़ेंगे जो देश, जो नीति चलाएंगे, जो राज चलाएंगे, और कुछ लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम करेंगे। इस तरह का विभाजन था और वो गोखले साहब का बिल गिर गया, वो पारित नहीं हो पाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसलिए, और आज भी हमारे देश में इस तरह के माइंडसेट हैं जो ये समझते हैं कि मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे क्यों पढ़ेंगे, वो उसी का परंपरा को जारी रखें, वो मेहनत करने वाले ही काम को करें जिसमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह का है। तो हमने अपने बहुत लंबे संघर्षों के बाद ये डिस्कोर्स डेवलप किया, एवरी चाइल्ड हैव ए राइट टू गेट क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत दिनों के बाद ये डेवलप हुआ है ये डिस्कोर्स। तो हमने अपने वैल्यू सिस्टम भी डेवलप किए हैं अपने संघर्षों के जरिए, अपने डिस्कशन के जरिए, अपने डायलॉग के जरिए, सोसाइटी के जो सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट के थ्रू हमने ये वैल्यू सिस्टम भी डेवलप किया। तो यही मुझे कहना है। तो इसलिए अगर सही एजुकेशन दी जाए और सही तरीके से उसको परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन दी जाए, अपने आप वो बच्चे के अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जो भी स्टोरीज पढ़ी सुनी है अपने स्कूल में, मुझे आज तक वर्ड टू वर्ड याद है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ अपनी स्टोरीज को कि मैंने क्या क्या उसमें पढ़ा था। जी सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट प्लीज? Yeah, John, Paul want to ask some question. John, which question you have? Good morning. Good morning, John. Good morning, Dr. V.K. Rao, sir, and Amarishi Rai, sir. So today I came to know much about what the education policy is, what the equality rights are given to the education, how the primary system is linked
with the secondary and with the higher education, because I work for a higher education institution and we are going for NAC accreditation. The thing is, we still have that foundation not clear in those people who are in the higher education, because the strong foundation was not laid. Now again, I'm remembering my old days, as Dr. VK Arora sir, you have said you remember your childhood stories and how you remember your schooling. I was just remembering my own experience, what has happened. I was so happy. And the way Amarash Rai sir was talking without any bias, you know. So I want to tell you, if the human rights tell about these things, that you can go to the human rights to have these rights to be in this particular country, why we are not taking so much of pressure on the government? Not I am telling go against the government, but showing the government these are the rights, these are the things which we Right, have. right, sir. We've got your point, sir. Thank you, sir. Amrish ji, actually, John sir का point बिल्कुल ठीक है, because sir, sir, why we all know that today's India's foreign policy is very strong, and a very important reason of successful foreign policy is this, that our educated people, those who are settled in different developed countries, many of them in Europe, in US, in other Middle East countries, that was because we were having very good education system at that time. Very good education system at that time, and that is why perhaps the youngsters, those who are there in European countries or in US or even in Russia these days, that is now not compatible to Indian scholars, because we are moving ahead. Everywhere, sir, you will find Indian students or Indian professionals, those who are working. So again, sir, linked to the same question, what do you think, sir? Same thing will come after 5-10 years? Yeah, Dr. Mohammed, just a minute, sir. We will take your question. Yes, you are right. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, which type of education system we have, there is a lack of opportunity. When children going to the other countries, they have such type of opportunity and they are doing better, because the Indian brain, I think it is in comparison to others. I'm not saying that we should say like this, but they are more brilliant, and they are doing better if they get opportunity. In India, we have no opportunity. अब आप देखिए कि for higher education in Delhi University, we have cut off 98%. It means you are excluding a big amount of children who want to take admission in such like Delhi University is a good university. So they have no option. They are already they are forced to exclude themselves from getting the admission in there. So हमारे पास opportunity नहीं है higher education. That's why the transition rate is only 25%. 25%. Now, National Education Policy is saying that we will open more colleges and universities to bring this GR ratio up to the 50%. And China is having 43%. And this US is having 85% transition rate. So it's a big number. तो इसलिए हम बाकी जगहों से बहुत पिछड़े हैं. और जैसा हमने कहा आपसे कि जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी इंडिया का जगह नहीं है. 500 में एक बैंगलोर के इंस्टीट्यूट है जो 300 पोजीशन पर है, and that is the only one. I guess Dr. Mohammed Mohsin is with us. Dr. Mohsin, are you there? Sir, आप हैं वहाँ पर? Dr. Mohsin Ali? Dr. Mohammed Mohsin Ali, if there is any problem, you can also write your question in the chat box.
Sir, I think he is connected but unable to communicate now. So if there is any question, we can still wait for 1-2 minutes. Otherwise, Sir Amrish ji, thanks a lot for giving us so much precious time of yours. आज मुझे बहुत कुछ पता चला. I am so much fascinated. वैसे otherwise also I am always working for quality education at my level. What I can do from my side. लेकिन आज सुन के लगा कि मुझे आपको ज्वाइन करना चाहिए. Thank you, सचमुच thank you for inviting me, and we should keep our contact. Thank you, sir. Yes, yes. Sir, yes. if I will get any questions, I will simply forward it to you. Please, 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 please. Thank you. Thanks to all the participants. Thanks a Thank lot. you, Arun sir. Thank you, thank Namaskar. you, thank you, thank you. Namaskar.